morning and welcome to lecture 2, motion in a straight line or one-dimensional motion. You have seen in previous lecture that we have given the initial or independent definitions of speed, velocity, distance, displacement, acceleration, retardation, etc. And just to have a very systematic study, you have studied already the definitions of distance, displacement, speed and velocity, acceleration and retardation, etc. Now, if we have some relationship, that is, suppose we are driving a scooter and we are noting down our readings that at this minute our speed was this, at this minute our speed was this, at this particular minute such and such thing. And in that case, we can very easily plot a graph between speed and distance. Similarly, between distance and time. That is, at this time our distance traveled was this, at this time our distance traveled by this. That means in the speedometer you can see both the things, that is the distance as well as the velocity, instantaneous velocity, both are given to you. And accordingly, if we plot a graph, we can have different type of characteristic, different type of graph could be done. First we discuss the displacement time graph. Remember, the distance time graph can also be drawn in the same way, but up to certain limit it has no relevance in comparison to displacement time graph. Therefore, I am discussing only the displacement time graph now. Yes, there are first diagram you can see on x-axis we take time and on y-axis we take this displacement, and it is a straight line which is parallel to time axis. What is the resultant? The body is with zero velocity. Velocity is zero. Why? Because velocity is generally given by the gradient or the slope of the graph, and slope is zero, therefore velocity is zero. And that means it is in stationary state. It is in stationary state. It is the first one. ये बॉडी टाइम कट रहा है लेकिन बॉडी का डिस्टेंस ही नहीं चल रहा है, यानी बॉडी रुके हुए है. आप किसी से स्कूटर चलाते चलाते आपने क्या किया, किसी का फोन आ गया, आपने गाड़ी इंजन बंद नहीं किया, बट यू आर जस्ट टॉकिंग ऑन फोन. तो ऐसे केस में क्या, आप तो कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस चल ही नहीं रहा टाइम के साथ, टाइम तक आगे चलता जा रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि देयर योर स्पीड और वेलोसिटी विल बी जीरो. ये फर्स्ट केस है. सेकेंड केस देखिए, the displacement is increasing with a very orderly way, that is, it is moving continuously. In equal interval of time, we always travel equal distances. In equal interval of time, we always travel equal distances. That means, what we conclude, that it has a single slope. That means it has only one velocity in this motion. That means it is moving with a uniform velocity. जब किसी का velocity uniform होगा, then it is very obvious it will have no acceleration at all. It is moving with uniform velocity. That means acceleration is totally zero. Well, अगर ना ये हो ना ये, अगर इस टाइप का मोशन हो, that is a curve type, a parabolic curve with upper bending, then what is obtained from this diagram? देखिए, ये जैसे 1, 2, 3 लिखा है, एक मिनट में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, दूसरे मिनट में 1 और 2 के बीच में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, और 2 और 3 के बीच इतने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है. तो इससे क्या, what you conclude, that with the in the same time interval, that body travels larger distances. Okay, with the passage of time, what we observe, the body continuously increases its distance in the same interval of time. That means it is definitely having an increasing velocity system. That its velocity will always be increased. Its velocity is increased constantly, and if the rate of increase in velocity is constant, then it must have a constant acceleration. If it is not so, then also it is an accelerating motion. Its motion is accelerated motion. That means accelerating motion कह सकते हैं, accelerated motion. Its motion is accelerated motion. Where you can see
that greater displacements are taking place in equal interval of time. That you can very easily observe. यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे इतना कम है 10 मीटर, यहाँ पर करीब 25 मीटर है, यहाँ करीब 50 मीटर है. तो यू कैन वेरी इजीली assume that in the same interval of time the velocity increases in such a higher way. Now let us come to this one. Here it is also a straight line. The diagram numbers, this is also a straight line. What we can observe that in this diagram we can see that it is a straight line. It has also a single slope, but angle is greater than 90. आप देख सकते हैं, जानते हैं आपको एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देखे जाते हैं, इसलिए इस लाइन में एंगल हमेशा ई वाला एंगल लिया जाएगा. तो वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर एंगल, and here it is displacement decreases uniformly with time, therefore it has a negative velocity. यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव वेलोसिटी. अच्छा, अब जब इतना हमने बता दिया, एक चीज हमने बीच में छोड़ दिया, डायग्राम नंबर 4. लेट अस चेक डायग्राम नंबर 4. इसका जस्ट उल्टा देखिए, एक जैसे लग रहा है. यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, बट यहाँ पर क्या है, जो ये वेरिएशन कुछ इस टाइप के है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज. देखिए यहाँ पर कितने ज्यादा था डिस्प्लेसमेंट, 0 से यहाँ के बीच. उसके बाद उसी टाइम इंटरवल में यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड कम हो गया, उसी टाइम इंटरवल में मैग्नीट्यूड और कम हो गया. यहाँ पर क्या लिखा था, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. यहाँ पर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है. दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट चेंज होना, तो इसके मतलब क्या है कि वेलोसिटी का चेंज होना यहाँ पर दिखा रहा है. तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी लगातार कम होता जा रहा है. तो वेलोसिटी कम होता जा रहा है, मतलब इट इज डेफिनेटली इट शोज द रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन. यहाँ पर रिटार्डेशन दिखाएंगे या डी एक्सीलरेशन दिखाएंगे. दैट वी कॉल, that is depicted by this diagram number 4. Similarly, we have the diagram number 6. Diagram number 6, it is very similar to this, but I am extending this further. मैं इसके नीचे और ले जाता हूँ. तो यहाँ पर क्या दिखता है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ कम होते होते 0 हो गया. ठीक है, तो इसके मतलब कि पहले कुछ ज्यादा था, उसके बाद इधर कम हो गया, यानी कि बॉडी इज मूविंग इन opposite direction, negative direction. But यहाँ पे after some time interval displacement is reversed, displacement becomes negative. देखिए हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, लगातार हम we are driving the vehicle, और हम लोग क्या किया, धीरे धीरे स्पीड अभी 40 फीट, 35 फीट, 20, फिर उसके बाद 19, ऐसे करते 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 0 कर दिया. तो ये चीज है हमारा, कंटिन्यूसली हम लोग जो डिस्टेंस को कम करते जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस को कम करते करते अब मैं अचानक टर्न कर जाए, मैंने डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बदल दे कंटिन्यूसली, फिर हम इंक्रीज करते जाए मोशन को, तो ये ऐसा होगा. द डिस्प्लेसमेंट बिकम्स नेगेटिव आफ्टर सर्टेन टाइम एंड देन इंक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड विद टाइम. देन इंक्रीजेस in magnitude with time. It indicates that the body returning from A and then moves towards C. यहाँ से A से आ रहा था और उसके बाद आपके इस यहाँ पर ऑलरेडी इसका वेलोसिटी आपका 0 हो गया. Then it is moving toward another point C. Remember, but यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मोशन है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव था. अब भले आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के मतलब क्या है लिखा हुआ है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजिंग एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, इट हैज अ सिंगल स्लोप, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम. यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली विद टाइम, यूनिफॉर्मली विद टाइम. कम एक ही कांस्टेंट रेट से कम होते जा रहा है. लेकिन यहाँ के बाद क्या है, उसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट बिकम नेगेटिव. इंडिकेट okay, displacement becomes negative after certain time. So this is how we discuss the displacement time graph. Remember, इसी ग्राफ में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को खाली हटा दूं और डिस्टेंस कर दूं,
तो इतने सिर्फ नहीं आएगा, ये सब चीज इरेलेवेंट हो जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इसी चीज को मैं बना दूं तो दिस इज ओके, दिस इज ओके, दिस इज ओके। यहाँ पर सिंपल है कि बॉडी रुकी हुई है, बॉडी चली नहीं है। यहाँ पर भी बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यहाँ बॉडी वेरिएबल स्पीड कहेंगे, यहाँ पर वेरिएबल स्पीड। रिमेंबर यहाँ पर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करूँ तो इस यहाँ पर जीरो स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड, ये भी वेरिएबल स्पीड। यहाँ पर मैं एक्सीलरेटिंग, डी एक्सीलरेटिंग ये सब वर्ड यूज नहीं कर सकती, वो डायरेक्शन ही नहीं है, और बिना डायरेक्शन के वेलोसिटी टर्म नहीं आएगा। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड को एक्सीलरेशन नहीं कहते, इसके लिए वेलोसिटी होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो डिस्टेंस टाइम के लिए मैं एक्सीलरेटिंग रिटार्डिंग मोशन ना कह के हम लोग क्या कहेंगे वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड यहाँ पर इंक्रीजिंग, यहाँ पे इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग कहेंगे। बाकी ये चीज जैसे किया वैसे यहाँ पर भी है, डिक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड। तो इन सब का सिग्निफिकेंस बदलेगा, लेकिन ये एक्सीलरेशन वर्ड कहीं नहीं आएगा, रिटार्डेशन वर्ड कहीं नहीं आएगा, जीरो एक्सीलरेशन वर्ड कहीं, बिकॉज nowhere we have to use the term acceleration there. Please keep it in mind that whenever the same graph is replaced as distance time graph, then we never have the term acceleration, but rather we can have variable speed, we can have variable increasing speed, variable decreasing speed, constant speed, zero speed, etc. Okay. Now next we take the another set, that is your velocity time. Now you can have quite similar graph, but here it is the velocity time graph. टाइम और वेलोसिटी के बीच में अगर रिलेशन आप निकालना है, जो कि आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हो डेली लाइफ में भी, वाइल ड्राइविंग और स्कूटर, और आप किसी को बैठा कर रखे, वो टाइम उसके पास सब नोट है, वो किस टाइम में उसको वेलोसिटी नोट करना है, आप सब पूछता रहेगा कि वेलोसिटी इस समय क्या, इस समय क्या, इस समय क्या, आपको बता दिया। और ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कि कोई ऑब्स्टिकल ना हो, आप यूनिफॉर्मली जा सकते हो या यूनिफॉर्मली तेज कर सकते हो, उस टाइप के केस हो सकता है। यानी कि अचानक बीच में बहुत भीड़ हो गया, बहुत गड्ढे हो गए, ऐसे रोड नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर दिस इज सच अ थिंग। लाइक हियर फर्स्ट केस इज लाइक दिस, that is when we can see that velocity remains constant, that is it is not changing with time. Okay, जो इस समय है 5 मिनट बाद भी वही रहेगा, 10 मिनट बाद भी वही रहेगा। The body moves with constant velocity, acceleration is zero, acceleration zero होता है। अगला क्या है, अगले में दो पार्ट हमने बनाया, एक तो ये जीरो से स्टार्ट करते हैं, इट बिगिंस विद जीरो, वेलोसिटी का स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या जीरो है, अरे स्टार्टिंग वेलोसिटी पहले से यू था, आप टाइम काउंट करना बाद से स्टार्ट किया। जब आपने स्टार्ट कर रहे थे उस समय टाइम काउंट नहीं किया, आप आधे रास्ते चलने के बाद अरे आपसे चले टाइम के साथ वेलोसिटी के देखे, तो यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन यहाँ तक आपका वेलोसिटी क्या था, फिक्स था। तो ये u, इसके बाद एक्सीलरेटिंग मोशन लिखा है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जो है यहाँ पर कांस्टेंट है, इन दोनों में रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। दूसरे वाले में क्या दिखा है, द बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी u एंड देन इट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ध्यान रखना कि बिफोर अटेनिंग द एक्सीलरेशन इट हैज ओनली अ कांस्टेंट वेलोसिटी u, वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। फिर थर्ड केस लाइक दिस, सिमिलर टू प्रीवियस केस, here it is the velocity and time. Velocity changes more in magnitude the same interval of time, that is the greater change in velocity in equal interval of time, an equal interval of time, so that in this velocity the bending upward represent an increasing acceleration. यहाँ पर देखिए एक्सीलरेशन भी ज्यादा जगह बदल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा एक्सीलरेशन का रेट भी कांस्टेंट है या नहीं, वो नहीं कह रहा, बट इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन नहीं है, यहाँ पर जीरो एक्सीलरेशन है, यहाँ पे इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इन द सेम वे अगर इसका बेंडिंग डाउनवर्ड हो पैराबोलिक कर्व का v और t में, तो इट गिव्स अ डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, इट गिव्स द रिटार्डेशन। और यहाँ पर जैसे देखते हैं स्लोप अगर आपका ऐसे हो 90 डिग्री से ज्यादा है, सिंगल स्लोप है, तो नेचुरली आपका एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होगा, इट इज मूव विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, बट इन नेगेटिव
direction in negative way, that is, it represents uniform negative acceleration. अगर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन ये दिखा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कम होता जा रहा है. मैं अभी इसमें 40 के स्पीड में चला रहा हूँ, फिर कुछ देर बाद 35 के स्पीड में होगा, फिर कुछ देर बाद 30 के स्पीड में होगा, 25, लास्ट में 0. तो ये वो वाले केस है. इसका मतलब मैं डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूँ. लेकिन अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहले तो मैं ऐसे ही चल रहा था, लगातार मैं यहाँ से जा रहा था वहां तक, जाते जाते धीरे धीरे स्पीड करते करते कम हो गया. ए से चलना स्टार्ट किया, बी में जाकर मेरा 0 स्पीड हो गया, ए से बी में 0 स्पीड हो गया. अब हम क्या, अगर बी से दोबारा मैं ए की ओर चलना चाहूँ तो मेरा डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या, वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव. यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नो डाउट. It becomes 0, then it becomes negative. It becomes negative. Velocity becomes negative and increases in magnitude. Velocity becomes negative and increases in magnitude. The body returning to its original position with positive acceleration. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉडी जो है चलते चलते बिल्कुल वापस आ जाते हैं. कोई आप यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ से 0 से स्टार्ट कर लगातार आपको कुछ पहले से ही कुछ स्पीड होगा, और उसके बाद यहाँ जाते जाते आपका स्पीड 0 हो जाता है. फिर आप रिटर्न कर रहे हैं और इस समय जो होगा आपका एक्सीलरेशन 0 नहीं, यहाँ पर आप रिटार्डेशन हो रहा, रिटार्डेशन यहाँ पर एक्सीलरेशन हो रहा है. तो दो पेज है, A to B and then B to A again. Okay, this is how we have this particular situation, and this is very common thing in every case. Remember, I am not removing all these things, but I must add one thing. कि किसी भी ग्राफ जो V और T के बीच होगा, V और T के बीच ग्राफ है, तो जैसे मान लो कि मैंने इसको मिक्सअप कर लूं like this and then like this. अगर मैं इनको टाइम के हिसाब से चेंज कर दूं, थोड़ा स्लो करा दूं, ये 1 2 3 4 5. Remember, this is A to B, C and D. अगर ये मोशन हम देखें, इस मोशन में देखेंगे A to B क्या था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से चल रहा है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से. B to C एक्सीलरेशन बिकम 0, बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी. C to D बॉडी मूव्स विद रिटार्डेशन, दैट इज वेलोसिटी डिक्रीजेस रैपिडली. ओके, यहाँ पर एक्सीलरेशन उतना नहीं, इतना रिटार्डेशन जाता है. एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है. लेकिन इन एवरी केस स्लोप गिव्स अस एक्सीलरेशन. किसी भी पोर्शन में स्लोप एक्सीलरेशन दिखाएगा. यहाँ का है कुछ, यहाँ कुछ है, यहाँ को उल्टा माइनस दिखाएगा या प्लस दिखाएगा, यहाँ 0 दिखाएगा. और एरिया क्या दिखाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. किसी पोर्शन में मैं ये एरिया पूरा निकाल दूं तो दिस गिव्स द displacement of the body or the car from 1 to 3 hours, 0 to 3 hours. 0 to 3 hours में अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो जैसे ये लिखा है 30, यहाँ पर लिखा है 60, ऐसे कुछ लिखा है मान लो, तो ये मैं मान के चलूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, हाफ इंटू 3 इंटू 60. ओके, दैट इज 30 इंटू 3, 90 मीटर स्क्वायर, 90 मीटर. That will be the area covered in this particular portion. So in this way, we have also seen that how we can use this in solving numerical. A lot of questions will be given in the additional PDF notes. You just go through them and you will definitely enjoy the thing. Next we will discuss, in the next lecture we will discuss something about the equations of motion. Okay, thank you.